ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਖੁਦਾ ਕਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ 10 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਹੁਣ ਪੋਤੜੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਾਈਓ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਚੋਲੇ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬੇ ਬੂਬੇ, ਹਨਾ, ਕੁੰਭ ਯਾਤਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਜ। ਸੰਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਕੀ ਆ? ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯਹਾਵੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਹਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਯਹੋਵਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾਮ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਰਕ? ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਹਾਵੇ ਸੀਗਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ, ਯਹਾਵੇ ਯਹੋਵਾ ਸੀ अन्य जातियां ਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਵੇ। ਯਹਾਵੇ, ਯਹਾਵੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਹੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਕੱਲਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੂਕ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਾਰੀਰਕ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਰੀਰਕ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਸ਼ਾਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਗਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ। ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਇਆ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਸੀਗਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇਖੋ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਸਭ ਆਦਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਲਟੀ ਗੋਡ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਉੜਦਾ? ਪੌਲੁਸ ਕੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ 120 ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਤੀਫਨਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਪੌਲੁਸ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਸ਼ਾਊਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਨਾ? ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਊਲ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਊਲ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਹਟਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੌਲੁਸ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਊਲ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਤ ਤੇ ਪੱਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਨਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਹੱਥ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਹਿਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਨ ਸੀ, ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਗਾ? ਇੱਕ ਖੁਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਪੌਲੁਸ ਕੋਲੇ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਹਿਣਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਰਿਆ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਊਲ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਰਾਜ ਲਏ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਤੀਫਨਸ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਦੁਲਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਯਹੋਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਤੀਫਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾहिने ओर ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤੀਫਨਸ ਜੋ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਖੱਬੇ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਸਤੀਫਨਸ ਕੱਲਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਮਿਸਟਰ ਯਹੂਦਾ। ਥੋੜਾ ਅਟਪਟਾ ਲੱਗਣਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ? ਸਮਝਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਚੱਕ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਖੜਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਾ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 50% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, 50% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਜੋ ਸੱਜਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤੀਫਨਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੱਜਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਰਿਤों के काम ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਹੈਗਾ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 54 ਤੋਂ।
मैं इस चीज ਨੂੰ ਪੜਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਮੇਨ। जब स्टीफन ने सतवें अध्याय दी और 55, परंतु उसने पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और खुदा की महिमा को यीशु को खुदा की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को खुदा के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। और स्टीफनस ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪਰ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਥਿਓਫਨਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਵਰਗ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 4 ਜੋ ਕਿ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਿਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬੜੇ ਪੇਤਾਂ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1963 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੇਟ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਖੁਦਾ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ 2021 ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ 9ਵੇਂ ਆਯਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਵ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਸਵ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸकी ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ। थोड़े समय च मेरी आवाज जाने वाली है, थोड़ा जल्दी करो। आमीन। मैनू नहीं पता खुदा क्यों घुवाई है, खुदा दे नाम की तारीफ होवे। पर जो कुछ खुदा कमाउंदा बड़ा लाजवाब हुंदा। आमीन। पर जो थियोफनस सी वो देख रहा है, कहना मैं देखा उस खुदा नूं, उस मनुख दे पुत्र नूं दाहिनी ओर। ये मनुख दा पुत्र कौन सी? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਆਮਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਆਦਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਆਦਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਗੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਯਹੋਨਾ, ਹੇ ਬ੍ਰੈਨਮ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਵਾ। ਉਹ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਸਕੂਨ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰ, ਕਾਲੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਸਟੀਫਨਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੀਸਰੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੀ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। हम तीसरी आमद का संदेश तो यीशु मसीह लिया सकता, कोई होर नहीं लिया सकता। जे तीसरी आमद का संदेश तुम सुन रहे हो, फिर अलर्ट रहो जी। मैं यीशु मसीह नहीं है, मैं साफ कह रहा। भाई करन जौन यीशु मसीह नहीं है, पर वो घोड़ा जरूर है जिहदे ते यीशु मसीह सवार आ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो महान खुदा वन कोई इंसान नहीं हो सकता। असी समय असमय गलतियां करते हैं। असी जे साडा असी कई असी कोई गलतियां नहीं करते। तो बाइबल की कह रही है, जिहड़ा कहंदा मैं पाप नहीं करता वो झूठा। समझ रहे हो? तो खुदा दा कलाम सच्चा। असी असी अपने आप असी कोई पाप नहीं किया, घमंड नहीं कर सकते। जे पाप किया तो धर्मी नहीं ठहर सकते। जे पाप नहीं किया तो बोल रहे हो मैं कोई पाप नहीं किया, तो खुदा हजारां गिना दूंगा छाड़। क्योंकि किवें गिनाऊगा? तुसी बोलोगे नहीं मैं कुछ नहीं किया, फिर खुदा तुहाडे विचारां नूं होर लुकाया नह चलाऊ पूरे।
थोड़े विचारों के विचार बोलन। खुदा कहूगा फिर मैं बाइबल च की लिखा, जो बिच्ची ने विचारिया वो कर तार के खुदा के नीवे हो गए आओ। ਉੱਚੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਨੀਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾ ਕੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਖ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਨੂੰ ਲਤਾੜੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 2021 ਤੋਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਚ, ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ ਗਾ। ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਾਖ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਆਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਖ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਉਹ ਰਾਖ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਨਿਰਗਮਨ ਕੱਲਾ ਉਹਦੀ ਗੁਪਤ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਕੀ ਸੀ? ਗਧਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਕੀ ਸੀ? ਗਧਾ ਕੀ ਸੀ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੁਲਹਨ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਜਿੰਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਕਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਆ, ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਗਿਆ ਹੋਣੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਵੜਿਆ? ਗਧੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਵਕਤਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਹਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਭੇਜੇਗਾ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਚ ਲਿਖਿਆ ਏਦਾਂ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਘਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਡੈਣੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਵੜਿਆ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਫੇਰ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਡੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ? ਕੀ ਫੇਰ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣੇ? ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ 18-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਡੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਗਧੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਡੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਆਂ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ। ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਵਰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ 3 ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਰੀਅਮ, ਐਲਿਸ਼ਬਤ, ਤੀਸਰੇ ਚਰਵਾਹੇ, ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਤੀਸਰੇ ਮਜੂਸੀ, ਚੌਥੇ ਚਰਵਾਹੇ। ਇਹ 4 ਲੋਕ ਸੀਨ ਤੇ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 2 ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ 2 ਝੁੰਡ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਇਸਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਲਿਸ਼ਬਤ, ਜੋ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਨਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ, ਨਵੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੇ ਆਮਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਜੂਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਆ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਮਜੂਸੀ ਕੌਣ ਆ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वो तारे तो ये क्या है? इस पंजाब जो है एक
सामर्थ्य में बड़ा है, एरिया में बड़ा है दिल्ली से, कई चीजों में। चाहे राजधानी दिल्ली है, फिर भी क्या है ये, खुदा कहाँ पे है? पंजाब में। क्योंकि आप नबी के संदेशों को पढ़ेंगे, नबी ने कहा जौन से इलाके में, जौन से कहीं भी राजधानी होती है, खुदा पहले राजधानी में आता है। जैसे अमेरिका की जो राजधानी होगी, खुदा पहले राजधानी में जाएगा। आमीन। जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका की, इंग्लैंड की राजधानी होगी, खुदा वहां पे जाएगा। क्योंकि जहाँ पे प्रधान होता है शारीरिक, वहां पे आत्मिक प्रधान पैदा होता है, खुदा वहीं पे भेजता है। आमीन। पर ये पुत्रों का मैसेज दिल्ली क्यों नहीं है? हालेलुया। क्योंकि दिल्ली को 15 बार जीता गया है। तो राजधानी कहाँ है? पंजाब। हालेलुया। यही वजह है मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि खुदा आज पंजाब में इस मैसेज को लेके आया है। और सब मुक्तसर ही क्यों चुना उसने? पीबीटी इसको ही क्यों चुना उसने? आमीन। क्योंकि पंजाब में सबसे छोटा है जो मुक्तसर है, श्री मुक्तसर साहब। क्योंकि जब यीशु का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? बैतलहम में, जो सबसे छोटा था। और कल कोई बात कर रहा था, मैंने उनसे यही कहा, वो कह रहे थे कोई बहन न्यू मतलब अटैच हुए हैं, अभी मैसेज की बात चल रही है पास्टर वरुण की साइड में। तो वो बहन कह रही थी पास्टर जी मुझे मैसेज बहुत अच्छा लगा, प्रभु ने चाहा तो मैं, खुदा ने चाहा तो मैं आपकी हेल्प करूंगी कि आप इजराइल घूम के आए, पास्टर वरुण और आप जाएं। मतलब मैं आपकी, खुदा ने चाहा तो, खुदा ने मुझे सेट किया तो मैं इतनी हेल्प करूंगी आपकी कि आप इजराइल घूम के आए। मैंने उसको पूछा, मैं कहा बहन मुझे ये बताइए, मैं इजराइल चला जाऊंगा, वहां की मैं दीवारें, ईंटें, मीनारे देखूंगा, क्या लोगों का भला होगा उससे? क्या विश्वासियों का भला होगा? मैं क्या आपको यही नहीं पता इजराइल है कौन? मैं कहा वो जो इजराइल है नक्शे पे, वो इजराइल नहीं है। एक्चुअल में जो खुदा की नजर में जो इजराइल है वो पंजाब है। हालेलुया। क्योंकि इजराइल भी एक समय में गुलाम हुआ था, जब सिख रेजिमेंट ने जाके पंजाब से उसको आजाद कराया था। तो इजराइल भी हारा हुआ था, और हारी हुई था पे खुदा रहता नहीं। आप इस मैसे में जीते हुए हैं। आमीन। इसलिए खुदा वो आपके पास है। जिस दिन खुदा इस मैसे में बाहर जाएगा, उस दिन आप हारे हुए होंगे और वो खुदा आपके पास होगा नहीं। आमीन। तो मैंने कहा जो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, खुदा आपको बरकत आपके अंदर है, आपने कहा इजराइल घुमाने की, हेल्प करने की, तो बहन आप कर चुकी हैं और मैं इजराइल घूम चुका हूं। आपने जो करना है खुदा के लिए करें। चर्च अटेंड करें, चर्च में जो भी शायद आपको लगती है जरूरत है, आप वो करें खुदा के लिए, है ना। इन चीजों के लिए मुझे अभी जरूरत नहीं है। मेरी जेब में अगर 10 रुपए होंगे तो मैं 10 रुपए खुदा के काम के लिए लगाना चाहूंगा इस समय, है ना। हाँ, मगर आगे जाके जो अगर खुदा ने बरकत दी, मेरे पास हुए, तो मैं घूमूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं अमेरिका भी जाऊंगा प्रचार करने के लिए, मैं कनाडा भी जाऊंगा प्रचार करने के लिए, और इजराइल भी जाऊंगा, खुदा ने चाहा तो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैसेज है जो इजराइल जाएगा, ये मैसेज। नबी जब इजराइल जाने लगा, खुदा ने रोक दिया उसको। क्योंकि जैसे कोई पेंटिकोस्टल युग के लोग जाए इजराइल, पेंटिकोस्टल जाए, कैथोलिक जाए, कोई भी जाए इजराइल मसीह का प्रचार करने के लिए, तो यहूदी इतने कट्टर हैं, वो कहेंगे आप खुदा को 3 टुकड़ों में बांट के हमें नहीं दे सकते, खुदा एक है, आप मूर्ति पूजक हैं। वो ऐसे बोलेंगे आपको सामने से। 3 खुदाओं का मैसेज लेके जाएंगे, तो अगर मान लीजिए 3 खुदाओं का मैसेज लेके जाएंगे, भाई बहनों ये चीजें प्रचार की, अगर आप शब्द होंगे ये, इसलिए मैसेज इजराइल नहीं गया। खुदा क्या है? मेल। यीशु क्या है? मेल। अब वो संदेश आया है जो इजराइल जाएगा। अब वो संदेश आया है कि अब ये संदेश यहूदियों से बात करेगा। आमीन। आज ये संदेश कहेगा कि मसीह आपके लिए मरा था, खुदा आपके लिए मरा था, उसके हाथ पैर थे,
उसका स्वरूप आपके जैसा था। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, यीशु मसीह की दाढ़ी है, उसके लंबे बाल थे। जो यीशु मसीह के सिर पे पगड़ी बांध दी जाए तो क्या लगेंगे वो? सिख बन जाएंगे ना। ते पगड़ी आउंदी है कदों? जदों जब लदीकिया काल खत्म हो जाते हैं, जब दुल्हन एज खत्म हो जाती है, तब दुल्हन अपने पति को ताज पहनाती है। आमीन। ये मैसेज है, ये पंजाब है। पंजाब में कई लोगों ने मसीह को तिरस्कार किया है, पर वो उनका खुदा नहीं था। आमीन। खुदा उनके लिए आया था, वो उनका खुदा नहीं था। अब खुदा ने कहा चौराहों से उठाओ। अब मुझे कोई अच्छा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए लूले लगड़े जो चलते ना हो, बस। अब अधिकार इन्हें देना है। आमीन। क्या आप चलते हैं अच्छे ढंग से? चलते हैं अच्छे ढंग से? आत्मिक लेवल पे आप अच्छे ढंग से चल रहे हैं, कोई डाउट नहीं है आपको। मान लीजिए आप इनसे, बच्चों से पूछिए, ये भी बाइबल नहीं पढ़ते होंगे, रेगुलर प्रार्थना नहीं करते होंगे ढंग से, ये भी लंगड़ापन है। ये आप बाइबल नहीं पढ़ते, ये भी लंगड़ापन है भाई। खुदा के वचन पे चल नहीं पा रहे। खुदा कहता है सब्बत के दिन को पवित्र ठहराना, ठीक है हम आते हैं, पर ये भी तो है कि आप वचन को पढ़ें। मतलब आप चर्च में आते हैं, ये साबित करते हैं कि हम हैं, पर ये साबित नहीं करते कि आप लूले, आप सही हैं। अगर आप जो वचन प्रचार हो रहा है आपको नहीं दिखाई देता, आपने सुन लिया, कहें चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब आप अंधे हैं, आपको दिखाई नहीं दिया। जैसे वो भाई एक वीडियो में कहता है, अंधों की नगरी में कोई आंखों वाला पहुंच जाए तो अंधों को दिक्कत होने लगती है। आमीन। तब तक तो सही होता है जब तक जैमसी जैमसी जैमसी, और जब वचन आता है तो अब दिक्कत शुरू होती है। मान लीजिए ऐसे ही मैं हूं, अगर मैं खुदा से सच में प्यार ना करता होता तो पहली बात तो मैं पृथ्वी पे होता नहीं, मुझे पता है इस बात का, मैं यहाँ पे नहीं होता। अगर मैं खुदा को प्यार ना करता तो ये बातें नहीं बोलता, जो मैंने आज प्रचार कर दी ना यहाँ पे, ये मैं नहीं बोलता। मैं सोचता भाई शायद कोई नवे भी आ रहे हैं, कोई पुराने आए हैं, शायद एक दो भाई बहन हमारे यहाँ पे नवे भी हैं, मैं ना प्रचार करूं इनको। आएंगे तो फायदा ही है मेरा, कुछ ना कुछ तो दे के ही जाएंगे, मैं ना प्रचार करता। पर इस देश पे कोई राज्य कर रहा है, किसने नोटबंदी की, ठोके की, उसे किसी से कुछ नहीं लेना देना। आमीन। उसने कहा था मुझे तो आपने मौका दिया, इतना ही बहुत है, तसल्ली कराऊंगा मैं। हालेलुया। वो पति ही नहीं होता जो अधिकार नहीं जताता, समझ गए बात को। इस यहाँ पे ऐसा प्रधानमंत्री बना है जिसने अधिकार जताया है। अगर आप पे अधिकार नहीं जताया गया तो वो पति है नहीं आपका। आमीन। अगर आप पे अधिकार जताया जा रहा है, इसका मतलब आपका हस्बैंड है, पति है वो। आमीन। अगर ये मैसेज आप पे अधिकार जता रहा है तो इसका मतलब आप खुदा के हैं, खुदा आपका है। आमीन। मैं चिंता नहीं करता किसी की, अब भी नहीं करता हूं, ना मैंने पहले की। 4 डॉक्टर थे, उनके बहन भी नहीं आती, ये अकेले परिवार आता था, भाई यूनुस का ओनली परिवार था, वो बहनें भी नहीं आती, तब भी मैंने कहीं मिलावटी प्रचार नहीं किया। मैं तो जानबूझ के वो चीजें रखता था, ये भी भाग जाए, ये भी निकल जाए, ये भी कहें हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने वो हर चीज प्रचार की, पर ये हिले ही नहीं। अब मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं, मुझे तो हर संडे फिर प्रचार करना है इनको, चाहे एक आए चर्च में, मैं तो करूंगा। मुझे पता है ये मेरी जिम्मेवारी है। आमीन। जब सब भाग जाएंगे, डंडों से तो भगा नहीं सकता मैं,
आमेन। फिर खुदा मेरे लिए खड़ा होगा। अब मैं इस बाइबल में से ढूंढ ढूंढ के भगा सकता हूँ, और जितना मैं इसमें ढूंढ ढूंढ के भगाने की कोशिश करता हूँ उतने और चले जाते हैं। आमेन। मैंने कभी मिलावटी संदेश प्रचार नहीं किया। आप इस संदेश को लेके जाके मिशनों में प्रचार करेंगे, आपको इस संदेश की वैल्यू पता लगेगी, और जिसने प्रचार किया उसकी वैल्यू पता लगेगी। एक समय था लोगों ने कहा भाई बहनों ने प्रचार किया, भाई बहनों ने प्रचार किया। आज आप क्या कहते हैं? बाइबल कहती है 7 मोहरें भाई बहनों ने प्रचार की। बाइबल कहती है 7 मोहरें खोलने के योग्य कोई नहीं था, ना ही स्वर्ग का खुदा जिसको आप यहोवा कहते हैं, ना ही पृथ्वी की दुष्ट आत्माएं, ना ही पृथ्वी का कोई मनुष्य। फिर तो भाई ब्रहणम ने कैसे खोल दिया? क्योंकि वो ना खुदा था ना मनुष्य था। आमीन। ना वो खुदा था ना मनुष्य था, इसलिए खोल दिया। आमीन। वो क्या था? मैं हूं सो हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं सच में आज मैंने आपके दिल की बात रखी है आगे। जब ये परिवार जुड़ा था थोड़े दिनों में मेरा चाह पूरे हो गए थे पास्टर बनने। फिर मैंने सोचा इनको यार कैसे ना कैसे यार कुछ चीजें ऐसे करते हैं, भी आप ही निकल जाएंगे तो फिर कोई ना कोई आटो तो घुमा ही लेंगे कहीं ना कहीं। बहुत चर्च है। हालेलुया। अब पहले स्टार्टिंग में वो अकेले भाई थे, भाई यूनुस। जब भाई के साथ ये घटना हुई थी, मुझे नहीं पता टाइम कितना हुआ, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता है, हफ्ते बाद आए हो बैठे रहो। आमीन। जब भाई यूनुस आए थे, भाई भाई कह रहे थे मैंने खुदा के आगे दुआ की, मैं किसकी मानूं, क्योंकि वचन का खुलासा हो रहा था, कुछ चीजें थी, घटनाएं थी। और जब हम सच्चाई को सुनते हैं तो भैया पता लगता है आपके पास सिम है, पवित्र आत्मा है। अगर आप उसको ऑन करेंगे तो टावर भी आएंगे। हालेलुया। अगर आप यहाँ पे सुनेंगे तो आपको पता लगेगा सच क्या है गलत क्या है। जब भाई जा रहे तो भाई ने प्रार्थना की, वो भाई सही है, ये भाई सही है, खुदा मुझे बता, मुझे नहीं पता। तो जब भाई आ रहे थे तो मैं कहीं पे जा रहा था, वैसे मैं छुट्टियां बहुत कम करता हूँ शॉप से। जब मैं आ रहा था तो भाई रास्ते में थे, मैंने आवाज मारी भाई को। जब मैंने भाई को आवाज दी तो वहां पे लिखा हुआ, भाई ने, बच्चों ने बोला, जो ऑटो में बच्चे थे बोल रहे थे कि अंकल जी कोई आवाज मार रहा है आपको। अंकल जी ने आगे से बोला बेटा आपका कोई पापा होगा शायद किसी का। जब मैंने आगे ऑटो घुमा के बाइक लगाया, मैं कहा बच्चों का नहीं, मैं आपका बाप हूँ। ये उन बच्चों का बाप नहीं, तेरा बाप है ये। और मैंने सच में ऐसे ही बोला था, और सच में आज ये मैं नहीं बोला था, ये खुदा बोला था। भाई मुझसे बड़े हैं, मैं ऐसे नहीं बोल सकता, पर ये मैसेज जो था ये बोला था, और सच में ये मैसेज सबका बाप है। जैसे भाई का नाम करण है ना, भाई का नाम दूसरा नाम करण भी है ना। तो मतलब आज मैं उसी जगह पे मैं खड़ा करूं, अब भाई के सामने एक इंसान में खुदा गया, बॉडी में खुदा गया, पर मेरे सामने तो बॉडी में नहीं आया ना। वही सीन भाई के साथ हुआ, वही सीन मेरे साथ हुआ। आमीन। एक दिन वो खुदा आ गया मेरे साथ। आमीन। उस खुदा ने कहा मैं तेरा बाप हूँ। ये जब संदेश आ गया है, आइए संदेश खोल रहा है हमारे सामने, हमें पता लग रहा है कि ये हमारा बाप है, ये बख्शेगा नहीं। आमीन। अगर इसने जुम्मा उठाया है आपको वहां ले जाने का, तो आपको बख्शेगा नहीं, आपके गुनाहों को बख्शेगा नहीं, वो बेपर्दा करेगा आपके गुनाहों को। हालेलुया। अगर आपको लूटना है उसने तो नहीं करेगा, वो तो बेपर्दा नहीं करेगा। आमीन। अगर वो आपको बचाने के लिए आया है, आपको ले जाने के लिए आया है, वो हर एक गुनाह आपका खोल के रखेगा। हालेलुया। सच में वो खुदा आज यहाँ पे मौजूद है। उस समय जो भाई के साथ हुआ, उस समय बहन जो इनकी वाइफ है, ये कह रही थी नहीं नहीं मैं तो वहीं पे चर्च जाऊंगी जहाँ पे मैं जाती थी, वहीं पे ठीक हूँ। आमीन। भाई ने कहा भैया मुझे संदेश सही लगा, कुछ भी हो, दुनिया कुछ भी कहती है कहती रहे, पर जो आप वचन बता रहे हैं ये सत्य है, और मैं ये सुनना चाहता हूँ। आमीन।
भाई ने कहा मैं अपनी वाइफ को वहां पे छोड़ के चर्च में दूसरे फिर आया करूंगा, पर मैं आया जरूर करूंगा। आमीन। और एक दिन शायद ये बहन आ भी गए थे, उसके बाद जो 2-3 मीटिंगें सुनी, उसके बाद ये खुद उनसे जाके कह रही हैं भी हम दुल्हन नहीं है। आमीन। तो ये खुदा का वचन है। मैंने तो हर वक्त जहां भी निकलो निकलो निकलो, पर आपको नहीं बोला भाइयों, दुष्ट आत्मा को बोला। हालेलुया। वो निकलती जा रही हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं। दुष्ट आत्मा निकलती जा रही हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं। आप मेरे लिए थोड़ी आए हैं, मेरी कोई शक्ल सूरत अच्छी थोड़ी है, आप खुदा के लिए हैं। आप यहाँ पे कोई ऐसा कोई बड़ा भवन तो है नहीं जिसको आप देख के कहेंगे देखिए भैया हमारा भवन ऐसा है। आप यहाँ पे खुदा के वचन के लिए आए। आमीन। और यहाँ पे खुदा का वचन है, फिर वो तराशता है आपको, वो एक शेप देता है, और फिर वो रंदा भी चलाता है, खड़च 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 की आवाज आती है। फिर जब वो आपको कहीं बारियों में लगाता है, फिर पता लगता है अरे ये तो ये डिजाइन बन गया। पहले क्या था, ये लकड़ी थी, एक इधर लाद जाती थी, एक इधर लाद जाती थी। जब इसको काटा मैंने, कुल्हाड़ा चलाया इस पे, जाके उस मशीन में लगाया, फिर इसके लकड़ियां कटती कि नहीं कटती, ऐसी आवाजें निकलती कि निकलती। फिर जाके उसको वो छीलता है, फिर वो बंदा आता है, फिर खुदा एक नबी को भेजता है, वो नबी एक रंदा उठता है, कड़च कड़च कड़च, चलता है नहीं चलता है। आवाजें आती कि नहीं ऐसे, इसलिए आती है ताकि वो खुदा आपको डिजाइन कर सके और अपने भवन में फिट कर सके। जब तक वो रंदा चलेगा नहीं आप पे, आप फिट नहीं हो सकते मेरे बहनों मेरे भाइयों। आमीन। जब वो रंदा आप पे चलेगा, जब वो कटर आप पे चलेगा, तब वो आपको काटेगा कुछ चीजों को। अगर आपकी लंबाई ज्यादा है तो वो काटेगा, काट काट के क्या करेगा, अलग करेगा आपकी बुराइयां। जैसे वो एक वीडियो में सुना था, वो कह रहे थे भी अगर आप जब आप प्रार्थना करते हैं खुदा से, खुदा मुझसे मेरी बुराइयों को दूर कर, और खुदा लोगों को दूर कर देता है। फिर आप कहते हैं नहीं वो लोग दूर क्यों हो गए, वो तो मेरे प्यारे भाई थे, आपको बुराई नहीं पता क्या है। आमीन। जब आप दुआ करते हैं तो खुदा आपके हित को देख के कार्य करता है, आपको नहीं पता होता शायद। आपको कई लोग अच्छे लगते हो, पर आपको पता है वो नुकसान करने वाले हैं आपका। हालेलुया। पर खुदा अच्छे से जानता है। हालेलुया। तब वो खुदा उन लोगों को क्या करता है, दूर करता है। तब आपको लगता है शायद खुदा ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं हुआ। छोटा एक बूंद जहर आपको खत्म कर सकती है, लीटर पीने की जरूरत नहीं है। आमीन। ऐसे ही वचन है खुदा का, एक उल्लंघना वचन की आपको मौत दिला सकती है। ऐसा नहीं है कि आप खुदा की आज्ञाकारी करें, आप चलते फिरें अच्छे से, देखो मैं तो सही हूं, आज मैंने इसे छोटा या वचन नहीं बन गया, कहता जमा ठीक है, जमा ओके नहीं ओके गए। हब्बा ਨੂੰ लगता ही मैं जमा ओके हाँ, परफेक्ट हाँ, बर्बादी लेके आ रही सी। आमीन। उन्होंने लग रहा है मैं हुण जमा मतलब गुनाह तो मैं कर ही चुकी हाँ, गुनाह तो मैंने कर ही लिया, मरी थोड़ी ना हूं मैं। देखो खुदा, अब जो आदम को फल खिलाया था वो क्या था, हव्वा की शिक्षा थी कि जो खुदा ने कहा था ना तुम मर जाओगे, देखो मैं जब सबूत हूं तुम्हारे सामने, मरी नहीं, जिंदा हूं। आदम अब तुम भी खा ही लो, देर मत करो। ये शिक्षा थी हव्वा की, जिसके शिक्षा के द्वारा आदम हव्वा के अधीन हो गया था। और स्त्री युग वहीं से स्टार्ट हुआ था, जहां पे पुरुष पर हुकूमत हुई। और ये हुकूमत जो थी तब तक चलती रही जब तक 2021 नहीं आया।
आमीन। आज के संदेश ने वो हुकूमत को बहाल किया आदम की, जो आदम के समय में अदन की वाटिका में थी, आज वो फिर स्त्री पे प्रभुता लाया है दोबारा। फिर आज स्त्री की प्रभुता खत्म हुई है। आमीन। आज वो पुस्तक वचन में लिखा हुआ है, अदन की वाटिका में जो आदम के हाथों से जो पुस्तक छीन ली गई थी, खुदा ने आदम के हाथों में फिर बहाल की है। और वो पुस्तक क्या था? सभी पे अधिकार रखो। स्त्री पे भी अधिकार था आदम का, सभी जानवरों पे अधिकार था। अब आया है अधिकार स्त्री पे, एंड टाइम मैसेज पे आदम का। अब ये राज्य बहाल हुआ है। वो पुस्तक जो अदन की वाटिका में छीन ली गई थी आदम के हाथों से, आज वो पुस्तक उसके हाथों में बहाल की गई है। हालेलुया। खुदा के नाम की महिमा हो। समय ज्यादा हो गया। हालेलुया। अपने आप को खुदा के प्रेम में बनाए रखो मेरे बहनों, मेरे भाइयों। आप संसार के साथ नहीं चल सकते। शारीरिक मनुष्य खुदा को खुश नहीं कर सकता। आप बर्बादी ला सकते हैं, खुदा के राज्य के विरोध खड़े हो सकते हैं, आमीन, पर आप खुदा को कभी खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो। उन पर जो भूल में है बेचारे, इनको अभी खुदा के बारे में नहीं पता है। शंका में किसको बोलते हैं? शंका में, जैसे मान लीजिए मैं खुदा किसी और चीज को मान रहा हूं, ये शंका है। जो शंका में है उन पर दया करो। जो अभी नहीं जानते उन पर दया करो। आमीन। उनको बुरा भला मत कहो। हालेलुया। उन्हें संभालो। अनंत जीवन के लिए हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। और जो शंका में है उन पर दया करो, क्रोध मत करो। आमीन। उन पर ताड़ना मत, तंज मत कसो। खुदा कहता है उन पर दया करो। और बहुतों को आग में से झपट निकालो। बहुतों को आग में से निकालो। झपट निकालो। अब जो अमृतसर से बहन थी उसने बताया कि पासे जब आपने मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे 16 साल से सपने आ रहे थे डरावने, 16 साल से। कह रही परसों खत्म हो गए। हालेलुया। करी अब मैं सुकून से सोती हूं। ये खुदा आशीषें बाहर के लेके जा रहे हैं, अंदर के कौन ले पा रहे? क्योंकि वचन में लिखा है, कोई भविष्यवक्ता अपने देश अपने नगर में सम्मान नहीं पाता। आप मैं आपके सामने रहता हूं, आप वो विश्वास नहीं बना पाएंगे, जब आप जितनी मर्जी कोशिश करें आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बाइबल का वचन है। आप वो सम्मान नहीं दे पाएंगे जो चाहिए। अब ये सम्मान नहीं है आप पूरी रिस्पेक्ट करते, मैं जानता हूं, बढ़ चढ़ के करते हैं आप, कोई कमी नहीं है किसी भी चीज में, पर आपका जो विश्वास लेवल है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके लिए मैं भाई हूं एक। हमारे भाई आते हैं, ठीक है, फोन में बात होगी, भाई होगी, भाई 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 भाई। जब बाहर जाएंगे उसके लिए क्या होंगे? आप भाई नहीं होंगे। उसके लिए एक भय होगा, खुदा का दास है, मैंने कोई गलती कर दी तो मुझे खत्म हो जाऊंगा, मैं खुदा के विरुद्ध हो जाऊंगा। वो पूरी रिस्पेक्ट करते हैं और आशीषें हासिल कर लेते हैं। और लोकल क्या होता है? हमारे भाई, हेलो भाई, ये होता है। हालेलुया। इसलिए हम आशीषें नहीं पा पाते। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जो भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करता है वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो खुदा के को दास जान के ग्रहण करेगा वो दास का बदला पाएगा। हम क्या बदला पा रहे हैं खुदा से? हालेलुया।
इसलिए आप आशीषों से वंचित हैं। आपकी जो आशीष है वो ऐसा नहीं है, वो है नहीं। जब राशन डिपो पे आता है ना, सभी के लिए आता है, आप नहीं गए तो आपकी गलती है। आशीषें जो आती हैं सभी के लिए आती हैं, आप पे नहीं आई तो आपकी गलती है, आप विश्वास नहीं कर पाए। आमीन। खुदा के भेजे हुए पे हालेलुया। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ, हमारी बहन बेचारे आज 9 बजे आई थे सुबह ही। मैं तो अभी बाहर निकला था। तो कहीं ना कहीं इस सेवकाई को उठाने के लिए इन सभी का हाथ था। अब ऐसा नहीं है कि आप हेल्प कर रहे हैं किसी भी चीजों, ये चीजें नहीं। जो आपका विश्वास है ना, जितना मजबूत है, वो विश्वास पहले एक बंदे में था। यहाँ पे वो पुश कर रहा था खुदा के वचन में आगे बढ़ने के लिए। आज वो विश्वास पैदा है। हालेलुया। जो आपको उत्साह कर रहा है, आपके पीछे कोई है, इसका मतलब विश्वासी। वो आपको उत्साह दे रहा है, उसका विश्वास आप में होकर आपको उत्साह दे रहा है। आमीन। कोई है जो स्थिर है वचन में, वो आपको स्थिर किए हुए है। वो आपको डगमगाने नहीं देता, डोले खाने नहीं देता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कौन हूं, कहां हूं। आप जानते हैं मैं पृथ्वी पे आया हूं कुछ समय के लिए, मुसाफिर हूं और मैंने अपना काम करना है। जैसे एक ड्यूटी होती है ना पुलिस वाले की, जब वो थाने में जाता है उसका काम होता है। अब वहां पे घर वाला नहीं आ सकते, आमीन। उसकी ड्यूटी होती है। इसलिए आप पृथ्वी पे एक पोस्ट पे हैं, आपकी ड्यूटी है एक। आमीन। आप यहाँ पे शादियां रचाने नहीं आए हैं, आप यहाँ पे रिश्तेदारियां चलाने नहीं आए हैं, आप यहाँ पे अपने आप को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं आए हैं। आपका पर्पस है एक, जिसके लिए आप पृथ्वी पे आए हैं। ये आपकी पहचान है। अगर आप शादियों में मस्त हैं, संसार में मस्त हैं, फिर आप हैं क्या? मनुष्य। ये गुण मनुष्य में तो पाए जाते हैं। मैं शादी करूं, मैं ऐसे करूं, मैं वैसे रहूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। क्या आप खुदा हैं? आपने कहा ये साइड में रखो भैया, पहले मुझे खुदा का काम करना है। खुदा का भवन को उसके फाटक जले हुए हैं, दाऊद को कोई जलन ना हो। दाऊद की कोई बात नहीं यार, बिरयानी बनाओ यार, फाटक कोई बात नहीं, खुदा है, उसके लिए कौन फाटक लगा सकता है? वो तो महान है, ऐसे बोलिए। उसके लिए क्या कौन कर सकता है? वो तो महान है, बनाओ बिरयानी। हालेलुया। क्योंकि याद रखें, जब खुदा ने कहा था एक शख्स को, जब खुदा ने दमड़ियां दी, खुदा ने सभी को दमड़ियां बांट दी। एक को 10 दे दी, एक को 8 दे दी, एक को 7 दे दी, एक को 1 दे दी, एक को 3 दे दी। उसके बाद जब खुदा उनसे पूछने गया, हिसाब लेने गया, तो जिसके पास 10 थी उसने 20 कमाई, जिसके पास 5 थे उसने 10 कमाई, जिसके पास 2 थी उसने 4 कमाई, जिसके पास 1 थी वो बड़े महान पुरुष थे। उन्होंने एंड टाइम मैसेज या पुत्रों का मैसेज ज्यादा ही सुन लिया था। वो ये भूल गए थे पुत्र अधिकार कामों के द्वारा प्रकट होता है। आमीन हालेलुया करने से अकेले नहीं। क्या जवाब आ रहा है उसका? खुदा ने कहा, हे दुष्ट दास, इससे भला होता तू इस दबड़ी को मुझे देता, मैं किसी और को दे देता। ये मैसेज तुमने जचा के रखे, इससे अच्छा तू वापस फेर देता, इनकार कर देता, मैं किसी और को दे देता। ये टेपें, ये मैसेज, ये बाइबल वापस कर देता, मैं किसी और को दे देता। क्या खुदा ने कहा कोई बेटा, कोई बात नहीं बेटा, मेरे घर में कोई बात बोला? ये खुदा है।
हालेलुया। अब इंप्रेशन आगे बढ़िए। खुदा मैं जानता हूं तू जहां भी नहीं बीता वहां से काटता है। अब ये है धार्मिक पुरुष। खुदा तू जहां पे नहीं बीता वहां से काटता है। इसलिए मैंने दमड़ी को जमीन में दबा दिया। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या था ये? किया कुछ नहीं खुदा के लिए, तालियां ठोकी बस। खुदा तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू महान है। अरे उसकी महानता की गवाही भी दी पृथ्वी पे। आज मैं यहां पे खड़ा हूं, किस लिए खड़ा हूं? खुदा की गवाही के लिए। मैंने सिर्फ तालियां नहीं ठोकी, मैं तालियां किसी भी चर्च में जाके ठोक लेता। मैं यहाँ पे तालियां ठोकने नहीं आया हूं, मैं हिजड़ा नहीं हूं। मैं यहाँ पे लड़ाई को लड़ने आया हूं और मेरे हाथ में तलवार है। आमीन। खुदा ने वो तलवार को देके भेजा है मेरे लिए। आमीन। और ये तलवार सातवीं मोहर है, जो कि भाई ब्राह्मण के हाथों में थमा दी गई थी। जब वो भाई ब्राह्मण एक गुफा में प्रेयर कर रहा था, उसके हाथों में तलवार आ गई। वहां पे सातवें दूत ने क्या कहा? ये राजाओं के राजा की तलवार है। और नबी ने कहा वो तलवार मेरे हाथ में फिट आ गई, फिट बिल्कुल मुट्ठे में। पर मैंने जब आंखें खोली तलवार को देख के हुई आग हो गया। डरा क्यों भाई? पंजाब में नहीं था इसलिए डरा, क्योंकि पंजाब वालों को तलवार चलानी अच्छे से आती है। आमीन। ये तलवार ही ऐसी है कि भाई ब्रह्म डर जाएगा। सच में ये ऐसी तलवार है। भाई ब्रह्म मरे नहीं है, एंड टाइम मैसेज वालों में भाई ब्रह्म बसते हैं। ये तलवार चला के देखे पुत्रों का मैसेज वहां पे, और जो सच्चा ब्रह्म होगा उसके हाथ में फिट भी आ जाएगी। वो डरेगा भी और उसके हाथ में फिट भी आ जाएगी। मतलब वो इस तलवार को इस्तेमाल करेगा, मैसेज को कबूल करेगा। हालेलुया। ये वो तलवार है, ये सातवीं मोहर है। और सातवीं मोहर का भेद कहां छुपा हुआ है? गर्जनों में। और गर्जने क्या है? वही यूहन्ना जिसको भाई ब्रह्म ने दुल्हन कहा है, वही यूहन्ना बोआ नरगिस अर्थात गर्जन का पुत्र है। ये मैसेज है आमीन, जो हमें पुत्र अधिकार देता है। हालेलुया। क्योंकि वो महान खुदा है, उसके तरीके फर्क हैं कार्य करने के। हालेलुया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे। महान खुदावन विष्णु से पवित्र खुदावन तेरा आपका धन्यवाद करते हैं। सच में खुदावन तू हमारे हृदयों से बात करने वाला खुदा है। सच में प्रभु जी आपने हमारे हृदयों को छेदा खुदावन। प्रभु जी सच में आप हमारे खुदा है। आप इसलिए ताड़ना करते हैं प्रभु जी कि हम संसार के बंधनों से छूटे मेरे खुदावन, मेरे खुदावन, कि हम आपकी महिमा के लिए आप प्रेजेंट रहें खुदावन विष्णु से। हम इस वचन के गवाह बन सके खुदावन विष्णु से, क्योंकि स्वर्ग में आप हमारे गवाह हैं मेरे खुदावन। खुदा प्रभु जी रहम करें, फजल करें, तमाम खता गलतियों को माफ करें खुदावन जो पिछले समय में हुई है खुदावन। हर एक भाई को खुदावन एक नया आत्मा, नया हृदय दे मेरे खुदावन। मेरे खुदावन वो आत्मा से भर के जाए मेरे खुदावन। तमाम अंधकार की शक्तियां खुदावन तेरे सामर्थी नाम से दूर और दफा की जाए खुदावन, और न्याय के दिन तक वो वहीं पे बंधी रहे खुदावन। तेरे बच्चे तेरी महिमा कर सकें, तारीफ कर सके खुदावन। जब तक जान है प्राण है खुदावन परिश्रम से आपकी महिमा कर सकें खुदावन। ऐसा फजल बख्शे खुदावन। अगर जो हमारा यहाँ से जाना पृथ्वी से नजदीक है खुदावन, इन्हीं दिनों में है खुदावन, तो हमें तैयारी बख्शे खुदावन कि हम अपने आप को तैयार पाएं खुदावन। प्रभु से रहम चाहते हैं खुदावन। जिन बहन भाइयों ने खुदावन जाने में आपको गलत बोला हो खुदावन, उन्हें माफ करें खुदावन। प्रभु से अनाज्ञाकारी की हो खुदावन, उन्हें माफ करें खुदावन। आपका दया, आपकी दया, आपका रहम उनके जीवने पे हो खुदावन। प्रभु से सच में खुदावन आपने हमसे बात की खुदावन, जो असली ओढ़नी है वो आपके बाल, स्त्रियों के बाल हैं मेरे खुदावन। और सच में खुदावन
पुरुषों के लिए आज्ञा है कि वो बड़े बाल ना रखें खुदावन यीशु से। सच में खुदावन आपने हमें इन वचनों के साथ साथ जीने का तरीका भी समझाया खुदावन, कि हम किस तरह के हों खुदावन। खुदा तमाम दिक्कत परेशानियों को दूर करें खुदावन, आपके सामर्थी नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग कर पाए थे, आमीन। कोई भी भाई बहन जिसको खुदा गवाही करे वो प्रार्थना करे उन वचनों। और मैं अपने प्यारे भाई को इनवाइट करूंगा आगे आ जाए। वचना नाल प्रभु जी तुसीं साडे नाल गलबात कीती, प्रभु तेरा धन्नवाद करदे हां प्रभु जी। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा धन्नवाद करदे हां प्रभु जी। तेरे वचन विच लिखिआ जिथे 2 ਜਾਂ 3 मेरे नाम विच इकट्ठे होंदे आ मैं उत्थे मौजूद हुंदा। हाँ यस प्रभु तुसीं इत्थे मौजूद सी प्रभु, तुसीं साडे नाल गलबात कीती प्रभु, तेरा धन्नवाद करदा हां प्रभु जी। तेरे वचन विच लिखिआ जद पिता ही ना खिंचे कोई मेरे कोल आ नहीं सकदा। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा धन्नवाद करदे हां प्रभु जी। ओ पिता ही क्या जिस दे उत्ते ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਛੜੀ ਨਾ ਚਲਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਮਲਾਕੀ 4:6 ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। जिंदा यहोवा तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे कोड़े खान वाला से प्रभु चंगे हुए हैं प्रभु, तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਦਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।